الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ زکوٰۃ اگر انسان ادا نہیں کرتا ہے تو اس پر کیا عذابات آتے ہیں، کیا تکلیف ہوگی، کیا مصیبت و پریشانی انسان کو اٹھانا پڑے گا، اس کے بارے میں بات آ گئی تھی۔ اور جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس پر کتنا اچھا انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مال بڑھا کر دیتے ہیں، اس کے متعلق بات آ گئی تھی۔ تو آج زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے بارے میں، تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنا ہو تو انسان پر، کتنا مال ہو تو انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا یعنی 80 پر 7 گرام اگر کسی انسان کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، 80 پر 7 گرام سے زیادہ سونا ہے تو مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچہ کو باپ دادا کی طرف سے آستے آیا ہوا ہے، سننا آیا ہوا ہے، وہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان آزاد نہیں ہے، آج کے زمانے میں آزاد کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ پہلے زمانے میں غلام وغیرہ کا معاملہ تھا، آج کے زمانے میں یہ معاملہ نہیں ہے، تو ہر ایک انسان آزاد ہونے کی وجہ سے ہر ایک انسان اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو نمبر 4 عاقل بھی ہونا، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا کہ کوسا صحیح کوسا غلط، یہ اس کی سمجھ اسے انسان کو ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوگا تو تبھی جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ساتھ میں پیسے نہیں ہیں، تو پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہو اور اس کے اندر وہ سال بھی گزر گیا ہو، نمبر 1 کیا ہونا ہے، اس پر سال گزرنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہونا ہے، ضروریات اصلیہ میں سے نہیں ہونی چاہیے۔ ضروریات اصلیہ کسے کہتے ہیں، یعنی گھر کے رینٹ بننے کے واسطے یا گھر کے خرچے کے واسطے، ریشن خریدنے کے واسطے، اسے تو کام کرنے کے واسطے، اس کے واسطے رکھا ہوا مال نہیں ہونی چاہیے۔ صرف سیونگ اکاؤنٹ میں ہو یا سیونگ کے طور پر ہو اور سننا ہو، سننے کی شکل میں ہو، وہ اماؤنٹ بھی کیا ہے، سننے کی شکل میں ہو تو تبھی جا کر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس 80 پر 7 گرام سننا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، کسی قسم کا قرض نہ ہو، ضروریات اصلیہ میں سے نہ ہو تو تبھی جا کر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، نمبر 2 اگر چاندی ہے تو کتنا ہونی چاہیے، 52.5 تولہ۔
52.5 तोला यानी 612 ग्राम होनी चाहिए। 612 ग्राम किसी इंसान के पास चांदी है, वो भी जरूरियात असलिया में से है, असलिया में से नहीं है, यानी उसकी जरूरत असलिया उसमें नहीं है, कर्ज वगैरह भी नहीं है, साल वगैरह पूरा गुजर गया है, तो तभी जाकर ज़कात फर्ज है। एक अब है ओनली सुन्ना हो, 1 ग्राम भी चांदी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह चांदी है 52.5 तोला, 52.5 तोला यानी 612 ग्राम ओनली चांदी, 1 ग्राम सुन्ना भी नहीं होनी चाहिए। तो तब ये मसला है चांदी का या सुन्ने का निसाब को लिया जाएगा। नहीं, अगर किसी इंसान के पास सोना चांदी दो भी है, सुन्ना 1 ग्राम है, चांदी 500 ग्राम के ऊपर है, तो इस वक्त दोनों को मिलाकर चांदी के रेट को लिया जाएगा। इस्लाम के अंदर एक कानून है कि पहले गरीबों का हक किसी भी तरह अदा करने की कोशिश की जाएगी। गरीबों का हक किसमें ज्यादा हक अदा होगा? चांदी के अंदर जल्दी होगा। चांदी देखो 1 ग्राम 102 रुपए है, सुन्ना देखो 1 ग्राम 9000 8000 है, तो अब इसमें से किसमें जल्दी ज़कात फर्ज होता वो देखा जाएगा। इस्लाम के अंदर गरीब को फायदा पहुंचाने के लिए देखा जाएगा कि सुन्ने से जल्दी निसाब पहुंचता है, ज़कात फर्ज होता है, या चांदी से, तो जिससे जल्दी ज़कात फर्ज होता है उसको देखा जाएगा। तो अगर किसी इंसान के पास सुन्ना चांदी दो भी है, तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे यहाँ के रेट के हिसाब से चांदी का रेट बहुत कम होने की वजह से चांदी पर ज़कात फर्ज है। यानी अगर किसी इंसान के पास 80 पर 7 ग्राम होना है, 80 पर 7 ग्राम सुन्ने का रेट से लगाएंगे ज़कात फर्ज होने का, तो 8 लाख 9 लाख तक जाना पड़ता है। यानी 80 पर 7 ग्राम उसके पास रहना, आज के जमाने में 8000 9000 सुन्ने का रेट है, तो इस हिसाब से देखा जाएंगे तो कब को जाको गरीब को फायदा होता है इसमें। लेकिन वही चांदी के एतबार से देखेंगे 1 ग्राम क्या है 102 रुपए है, तो इस तरह 60 पर 5000 में ज़कात इंसान पर फर्ज हो जाता है। तो इस वजह से गरीब का फायदा 60 पर 5000 में होने की वजह से पहले उस पर ज़कात फर्ज कर देंगे। तो दूसरा मसला ये है कि किसी इंसान के पास सुन्ना चांदी दोनों है, तो उस पर चांदी के रेट के हिसाब से लगाया जाएगा। चाहे सुन्ना 9 ग्राम पूरा सुन्ना छो, एक ही ग्राम चांदी है, 21 ग्राम है चांदी, फिर भी चांदी का एतबार कर कर ज़कात को फर्ज कर दिया जाएगा। तो इसलिए इंसान पर ज़कात फर्ज हो जाता है। तो दूसरी शक्ल ये है। तीसरी शक्ल ये है कि अगर किसी इंसान के पास सुन्ना भी नहीं चांदी भी नहीं, लिक्विड कैश है। लिक्विड कैश अगर किसी इंसान के पास फिक्स्ड डिपॉजिट में हो या सेविंग अकाउंट में हो, किसी भी तरह 60 पर 5000 है और उस पर कर्ज किसी किस्म का नहीं है और वो किसी खर्चे के वास्ते नहीं है, किसी खर्चा के तो घर बन लेना ऐसे के खर्चे नहीं, यानी रोज खाने के खर्चे, घर चलने के वास्ते किराया बनने का खर्चा हो, पेट्रोल का खर्चा हो, या ईद आता है बोल को ईद के वास्ते रखा हुआ हो, ऐसे के खर्चे नहीं रहना। घर बन लेने के वास्ते सेविंग करते, सालों से सेविंग करता है, तो उसमें अंदर ज़कात फर्ज है। यानी अगर कोई इंसान घर बन लेने के वास्ते पैसे जमा कर रखा हुआ है तो उसके अंदर ज़कात होगा। तो अगर किसी इंसान के पास लिक्विड कैश 60 पर 5000 सेविंग अकाउंट में हो और उसमें जरूरियात असलिया में से ना हो, यानी घर के जरूरत के वास्ते ना हो, कर्ज भी नहीं है, साल भी गुजर गया, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसके अंदर से हिसाब लगाकर वो ज़कात को अदा करना पड़ेगा। तो ये पहले ज़कात फर्ज होने की शक्ल है। तो और किस किस चीज में ज़कात है? तो फरमाते हैं कि अगर किसी माल तिजारत यानी दुकान के अंदर बिजनेस करने के वास्ते जो माल डालते हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, चाहे वो किराना शॉप हो, चाहे वो कौन सा भी शॉप हो, या जैसे बाइक मैकेनिक के वास्ते सामान बेचने के वास्ते रखा है, कार मैकेनिक का हो तो उसके स्पेयर पार्ट्स रखा हुआ है, तो ऐसा जो भी दुकान हो उसके अंदर अगर 60 पर 5000 रुपए का माल रखा हुआ है, चाहे कोल्ड ड्रिंक लख लिया है 60 पर 5000 के, दाल चावल गेहूं ये 60 पर 5000 का दुकान के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर भी साल अगर गुजर जाता है तो उस पर भी ज़कात फर्ज होता है। तो साल गुजरने पर उसके अंदर भी हिसाब लगाकर ज़कात को निकालना पड़ेगा। अब ये साल कब का एतबार है? शमसी साल एतबार है या कमरी साल का एतबार है? दुकान जब लगाया है, अगर जनवरी में दुकान लगाया है तो फिर जनवरी के अंदर साल होता है, तो तब से तब का एतबार होगा।
रमजान से रमजान का नहीं, रमजान से रमजान का एतबार नहीं। दुकान कब लगाया? जनवरी में लगाया, फरवरी में लगाया, मार्च में लगाया, कब लगाया? जब लगाया है उस महीने से लेकर फिर आइंदा साल वही महीना वो डेट आ जाए तो साल हो जाता है। साल होने के बाद ज़कात फर्ज हो जाता है। तो अगर माल हो तो तब। अब बाज़ दुकानों का हाल यह होता है कि पहले माल तो अपना कम रहता है, पैसा अपना कम रहता है, कर्ज लाकर पहले माल डाल लेते हैं। कर्ज पहले से माल रखा हुआ होता है, इधर बेचते इधर कर्ज पेड़ दे, इधर बेचते इधर कर्ज पेड़ दे। तो दुकान इस तरह का बिजनेस है। तो उस वक्त जितना अपना माल है उसी को देखा जाएगा, कर्ज के माल को नहीं देखा जाएगा, कर्ज का एतबार नहीं किया जाएगा। तो माले तिजारत के अंदर तो एक साल जब दुकान लगाया है वहां से लेकर वहां तक साल हो और वो 60 पर 5,000 का माल दुकान के अंदर मौजूद हो तो उस वक्त ज़कात फर्ज हो जाता है। ये 60 पर 5,000 आज के रेट के हिसाब से है, यानी आज का जो सोने का रेट, चांदी का रेट है उसके हिसाब से ये 60 पर 5 है। अगर आइंदा चलकर कम हो जाए तो 50,000 भी बन सकता, 40,000 भी बन सकता, वो हमें बोल सकते हैं। चांदी का रेट जितना ज्यादा होगा तो उतना लिमिट बढ़ेगी। अगर चांदी का रेट कम हो जाएगा तो लिमिट कम हो जाएगी, यानी कभी गुज़िश्ता साल 50 पर 5,000 या 50,000 ही था, आज देखे तो 60 पर 5,000 चले गया। अगर चांदी का रेट कम हो गया, 90 को आ गया, तो जब और भी लिमिट भी कम हो जाती है। किसी इंसान के पास 50,000 है तो ज़कात फर्ज हो जाता है। चांदी का रेट 80 रुपए आ गया तो यहाँ पर भी अभी कम हो जाएगा, यानी किसी इंसान के पास 40,000 है तो ज़कात फर्ज हो जाता है। इस तरह चांदी का रेट कम हो जाएगा तो ज़कात की लिमिट भी कम हो जाएगी, चांदी का रेट बढ़ेगा तो ज़कात की लिमिट भी बढ़ेगी। तो इतना है तो ज़कात फर्ज होता। इस तरह तो दूसरा मसला है कि माले तिजारत के अंदर, तिजारत यानी बिजनेस के अंदर 60 पर 5,000 का माल हो तो तभी जाकर ज़कात फर्ज होगा। तो दूसरा मसला है, अगर इसी तरह किसी के पास रहने के वास्ते घर है तो इसके अंदर किसी किस्म का ज़कात नहीं है। अगर किसी के पास रहने के घर को छोड़कर एक 4 घरा एक्स्ट्रा है, घर अपने रहने के वास्ते घर है, एक्स्ट्रा 4 घरा है, तो भी उसमें भी ज़कात नहीं है। अगर किराया देता है, वो 4 घरा है किराए को देता है, उससे किराया आता है, किराया आने के बाद अगर खर्च हो जाता है, आता है खर्च हो जाता है, आता है खर्च हो जाता है, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। अगर आता है वो पैसे सेविंग होता है तो उसके अंदर उसमें भी साल पूरा होना और उसको 60 पर 5,000 से ज्यादा होना तो तब जाकर ज़कात उसके अंदर फर्ज होता है, जो किराए का इनकम जो होता है। तो नंबर 1 क्या है, खास घर है, वो घर के अंदर रहता है तो उसमें ज़कात नहीं, चाहे उन 4-5 घरा मोल लिया तो भी उसके अंदर भी ज़कात नहीं है। किराया आता है तो किराया सेविंग होता है तो उसके अंदर ज़कात है। तो किराया, और इसी तरह नंबर खाली जगह हो या जंगल हो, जंगल का मसला अलग है, जंगल के मसाइल अलग है, खाली जगह है, प्लाट है वगैरह, तो ऐसी जगह पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। अगर वो जगह लिया सोच बेचने के इरादे से, यानी अगर कोई इंसान क्या फ्यूचर में जगह का रेट बढ़े तो बेच डालेंगे बोलकर आप मोल कर रख लिया है, तो हर साल उन ज़कात, प्लाट का रेट कितना है कि उस हिसाब से ज़कात देते रहना। वो 10 लाख रुपए रखो, प्लाट लिया है, फ्यूचर में बढ़े तो हमें बेचेंगे समझता है, तो ये फ्यूचर कितने साल रहता है कि उतने साल तक इन वो प्लाट के ऊपर 10 लाख के ऊपर ज़कात निकालना पड़ेगा। इन लियासो रेट का नहीं, उस रोज प्रेजेंट रेट का देखा जाएगा, उस साल जो साल ज़कात अदा करता है वो देखा जाएगा। मसलन मैंने प्लाट लिया है 10 लाख रुपए में, तो 1 साल के बाद उसका रेट हुआ है 12 लाख, तो 12 लाख का एतबार होगा। मैं लिया ना 10 लाख में, इतना लिया मैं 10 लाख का ज़कात दे दूंगा, तो नहीं, वो प्रेजेंट रेट का एतबार किया जाएगा कि उस जमाने में, वो साल में उस प्लाट का क्या रेट है कि उस रेट के हिसाब से ज़कात अदा करना पड़ेगा। बेचने के इरादे से अगर खरीदा है, बेचने का इरादा नहीं है मगर धंधे पढ़कर रहता कब तो भी देखेंगे, ऐसा पढ़कर रहने के इरादे से लिए तो ज़कात नहीं है। तो जो खाली जगह है उस पर भी ज़कात नहीं है, अगर बेचने के इरादे से हो तो उस पर भी ज़कात वाजिब होता है। एक और है, क्या खरीदते जब क्या था इरादा, बड़े तो रेट बेचेंगे, नहीं कहे तो नहीं, बड़े तो बेचेंगे, नहीं कहे तो हमारा बच्चा किसे काम देता ले, इस इरादे से है। बेचने का इरादा नहीं है पक्के तौर पर, तो उसका इरादा किधर है कि उसका एतबार, यानी बेचने का इरादे की तरफ ज्यादा ढलान है, बेचने का इरादा ज्यादा है ना, रख लेने का इरादा कम है तो ज़कात फर्ज, बेचने का इरादा कम, रख लेने का इरादा ज्यादा है तो ज़कात नहीं।
यानी जैसे इरादा होगा वैसा फैसला होगा। खरीदते जब क्या था, बेचने का इरादा, मोल लेते जब क्या था, इरादा था कि रख लेंगे, बेच डालेंगे फ्यूचर में, बोलकर खरीद लिया। बाद में देखे तो प्लाट अच्छा दिखा, नहीं मैं आज घर पर लेकर तुम बोलकर नियत बदल दिया तो जकात भी चले गई, जकात भी खत्म हो जाता है। नियत पर डिपेंड होता है। अगर उसका नियत रख लेने का है तो जकात नहीं, अगर नहीं बेचने का इरादा है तो जकात है। अगर कोई इंसान ये कब जकात ये कब से शुरू होगा, जब बेचने के इरादे से निकाल देता है। निकालने का मतलब क्या, किसी को ब्रोकर को बोल दिया, वाह मेरे इतने सेंट जगह है, कौन तो है तो बोलकर बोल दिया तो जब से शुरू हो जाएगा। नहीं बोला नहीं है, एहसास रख ले बैठ गया है तो जकात भी नहीं है। तो नियत पर डिपेंड होता है प्लाट का एतबार। और इसी तरह अगर किसी इंसान के पास हीरे है, मोतियां हैं, डायमंड से जवाहिरात है, ऐसे के रत्नालु जो बोलते ना, वो जितने भी पत्थर हैं, कीमती जो पत्थर हैं, रत्नालु हो, मोतिया हो या जवाहिर हो, डायमंड्स हो, ये जितने भी पत्थर हैं, अगर वो करोड़ों में भी चले जाए तो भी जकात उस पर नहीं है। उसके ऊपर किसी किस्म का 1 रुपए का जकात उसके ऊपर नहीं है, हीरों के ऊपर। सुन्ने से भी ज्यादा रेट ना कहे तो भी उसका एतबार नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर सुन्ना, चांदी, पैसे, ये तीनों पर ही एतबार किया जाएगा। पत्थरों पर उसके ऊपर जकात का फर्ज नहीं है। चाहे वो उसका बिजनेस, अगर बिजनेस करता है, वो पत्थरों का बिजनेस है तो फिर जकात फर्ज हो जाता है। यानी डायमंड का बिजनेस इसे है, मोतियों का बिजनेस है, तो माले तिजारत के अंदर आ जाता है। माले तिजारत के अंदर आने की वजह से उसके वैल्यू के हिसाब से इन जकात निकालना पड़ेगा। नहीं घर के अंदर रख लिया है, यानी डायमंड नेकलेस है, अब नेकलेस के अंदर जो डायमंड है उसको निकालना पड़ेगा। यानी नेकलेस डायमंड नेकलेस है तो डायमंड के साथ देखा जाए तो 50 लाख है, और डायमंड निकाल को देखा जाए तो 20 लाख ईच है। नेकलेस का वैल्यू 20 लाख है तो उसका एतबार किया जाएगा, और डायमंड का एतबार नहीं किया जाएगा। ये मसला भी मसला जानकर रखने की जरूरत है, क्योंकि डायमंड का जो होता है नेकलेस के अंदर, अंगूठी के अंदर, चीजों के अंदर जब लग जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है। लेकिन जब जकात निकालते हैं तो पूरा ओनली सुन्ने को देखा जाएगा, उसके अंदर लक्को है सो हीरे, उसके अंदर लक्को है सो पत्थरा, उसके अंदर लक्को है सो मोतिया का एतबार नहीं, वो निकाल को जकात डालना। कैसे, अभी मैंने मिसाल दी है कि अगर डायमंड नेकलेस के अंदर डायमंड लगा हुआ है तो उसका वैल्यू क्या है, 50 लाख रुपए बनता है। वो डायमंड निकाल दिया है तो उसका वैल्यू सुन्ने के एतबार से देखे तो 20 लाख ही बनता है। तो अब यहाँ पर 20 लाख का ही जकात उसके ऊपर फर्ज होता है, वो डायमंड का नहीं, वो डायमंड के ऊपर जकात नहीं होता है। तो ऐसे, तो इसी तरह घर के सामान में भी जकात नहीं है। घर के अंदर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ऐसे चीजें रखा हुआ है तो उसके अंदर भी जकात नहीं है। और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी, आजकल में डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर भी जकात नहीं है, उसके अंदर भी जकात नहीं है। और इसी तरह शेयर मार्केट में पैसे लगाया हुआ है, शेयर मार्केट में जो पैसे लगाया हुआ है वो पैसा इतना है तो वो माले तिजारत का हुक्म रखता है। माले तिजारत यानी उसके अंदर अगर वो 60 पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें किसी किस्म का कर्ज वगैरह नहीं है, तो वो भी माले तिजारत की तरह है, तो उसके अंदर भी जकात होगा। और इसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप किसी के पास है तो उसके ऊपर भी जकात नहीं है। और इसी तरह माले हराम में भी जकात वाजिब नहीं है। माले हराम किसे कहते हैं, चोरी का माल है, किसी इंसान का माल चोरी कर लिया, या किसी इंसान का माल हड़प लिया, किसी इंसान का माल जबरदस्ती छीन लिया, किसी इंसान का माल जबरदस्ती मार कर ले लिया। जितने भी तरीके हैं चोरी के, हराम माल के, वो वड्डी का माल है या करप्शन का माल है, ये जितने भी माल हैं उसके अंदर जकात वाजिब नहीं है, बल्कि उसका हुक्म यह है, यानी जो दूसरों से लिया हुआ है, चोरी का माल है तो उसके मालिक को पहुंचाना जरूरी है, और करप्शन का माल है तो वह भी उसके मालिक को पहुंचाना जरूरी है। वड्डी का माल है जो बगैर सवाब की नीयत के किसी गरीब को दे देनी चाहिए। वड्डी का पैसा है, अकाउंट में पड़ता है, जैसे कि बैंक में अगर पैसे डालते हैं, वड्डी के पैसे अकाउंट में इंटरेस्ट डालता है बैंक वाला, तो वो पैसे जो है किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे देनी चाहिए, उसमें सवाब की नीयत करने का इरादा नहीं करनी चाहिए, बगैर सवाब की नीयत के देना पड़ेगा उसके, क्योंकि वो हराम माल है, हराम माल में सवाब का इरादा करना अच्छा नहीं है।
तो मसला यह है कि हराम माल जो भी शक्ल से आए तो उसके अंदर ज़कात नहीं है। और अगर हलाल और हराम दो भी मिक्स है, वड्डी के पैसे भी है, अच्छे पैसे भी है, करप्शन के पैसे भी है, अच्छे पैसे भी है, चोरी के पैसे भी है, अपने पैसे भी है, दो भी अच्छे पैसे और खराब हलाल हराम दो भी मिक्स है, तो हलाल जितना हो उसके अंदर ज़कात फर्ज है, हराम के अंदर नहीं है। वो मालूम होता नहीं कहे तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा, कितना हमें कितना चुराई की कितना करेगी, अपने आप हर एक को अपना अपना मालूम होता है, वड्डी का पैसा कितना है, असल पैसा कितना है, करप्शन का कितना है। तो इस तरह हर एक का अपना अपना हिसाब लगाकर अंदाजे के तौर पर उसके अंदर से हलाल पैसों के अंदर ज़कात को अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह कर्ज के पैसे में ज़कात है। कर्ज के पैसे एक है, कर्ज के पैसे हमें देना, एक है हमें लेना। अगर मैंने किसी को दिया है तो मैंने किसी इंसान को कर्ज के तौर पर 1 लाख रुपए दिया हूं, तो वो लाख रुपए का ज़कात अदा करना मुझ पर फर्ज है। लेकिन शर्त क्या है, तो दो ऑप्शन भी मुझे दिया जाएगा। क्या अगर मैं वो पैसों का ज़कात अब भी अदा करना चाहूं तो भी अदा कर सकता हूं, नहीं वो पैसे लाख रुपए मुझे दे डालने के बाद मैं ज़कात अदा कर दूं बोले तो तब भी अदा कर सकता है। एक पहले देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं उन मुझे पैसे दे डालने के बाद मेरे हैंड ओवर में आने के बाद मैं ज़कात अदा कर दूं बोले तो दोनों ऑप्शन उसके वास्ते जायज है। तो कर्ज के पैसों में भी ज़कात है। अगर कोई इंसान पर कर्ज है, मसलन मेरे पास है एक 5 लाख रुपए, देखे तो 6 लाख कर्ज है, 5 लाख रुपए मेरे पास है, लेकिन मेरा कर्ज क्या है 6 लाख है, 6 लाख मैं कर्जदार हूं, तो मैं अब 6 लाख उसके अंदर से 5 लाख को कर्ज के अंदर से निकाल दिया जाएगा, तो हालांकि मैं कर्ज ज्यादा होने की वजह से मुझ पर से ज़कात भी खत्म हो जाता है। हाँ, अगर मेरे पास 5 लाख है लेकिन लाख रुपए कर्ज है, तो बाकी के 4 लाख रुपए का ज़कात अदा करना पड़ेगा। यानी मेरे पास अगर 5 लाख है, 1 लाख रुपए कर्ज है, तो 1 लाख को निकाल कर बाकी के 4 लाख के अंदर से ज़कात अदा करना, बाकी के 4 लाख से ज़कात अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह हज के लिए पैसे रखते हैं, हज के वास्ते पैसे जमा लिया कि मैं फ्यूचर में हज करना, उम्रा करना बोलकर, तो वो पैसे अगर कोई इंसान जमा कर रखता है, उसमें भी अगर साल गुजर जाता है, वो भी 60 पर 5,000 के ऊपर आ जाता है, तो उसमें भी ज़कात वाजिब होती है, उसके अंदर से भी ज़कात देना ही पड़ेगा। देखे तो या अल्लाह अच्छा काम करने से ना ये पैसे रखा, हज करने के वास्ते इतना रखा गया, तो हज करने जाना गया तो अच्छे पैसे लेको जा, खराब पैसे कहीं लेको जाता, तो हज करने के वास्ते जाता है तो हज करने के वास्ते हलाल पैसे ही, यानी जिसके अंदर ज़कात से पाकीज़ा हो, ऐसे पैसे ही लेकर जानी चाहिए ताकि हज भी कबूल हो। तो इसलिए हज के वास्ते रखे तो भी वो पैसे भी ज़कात फर्ज होता है। लेकिन यहाँ पर एक रूल होता है, क्या, एक होता है प्राइवेट एयरलाइन से जाना, एक होता है गवर्नमेंट एयरलाइन से जाने का हुक्म। प्राइवेट एयरलाइन से अगर जाते हैं तो वहां पर पैसे बन दिए तो वो लोग कुछ भी रिटर्न हम आपको देते नहीं। प्राइवेट एयरलाइन से अगर हम हज करने के लिए जाते हैं तो रिटर्न हमारे वास्ते क्या भी नहीं रहता है, तो उसके अंदर ज़कात नहीं रहता। अगर गवर्नमेंट एयरलाइन से अगर हम जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी कुछ पैसे हमें वापस करती है। मसलन हमें 5 लाख बने तो उन 50,000 की, लाख रुपए की हमें बाद में पूरा उसका खर्चा निकलने के बाद बाकी के पैसे हमें वापस करता है। तो वापस करने के बाद जो पैसा बचा है उसके अंदर से ज़कात अदा करना होगा। हज के अगर नहीं गया है, सेविंग अकाउंट में है वो पैसे, तो 5 लाख रुपए हज को जाने के वास्ते जो रखा है ये सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो ज़कात फर्ज होगा 5 लाख का अदा करना। लेकिन वो एडवांस के तौर पर हज हाउस को अदा कर दिया है गवर्नमेंट, वो हज हाउस क्या है, गवर्नमेंट का है, तो वो जो रिटर्न देगी हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद, वो पैसे जो रिटर्न देगी जितना बचा है उसके अंदर एक ही ज़कात अदा करना। अगर वही प्राइवेट एयरलाइन से, प्राइवेट एजेंसी से जाता है, कुछ भी पैसे देती नहीं है, तो भी ज़कात उसके अंदर भी नहीं होता है। तो एडवांस दिया तो ये हुक्म, गवर्नमेंट को दिया तो ये, प्राइवेट को दिया तो ये, इस तरह अगर वो इस पैसे अकाउंट में रहे तो ये हुक्म अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह गिरवी में रखो है, गिरवी बोले तो ताकत रख लिया, कोई तो चीज, एक है ताकत रख लेना, एक है ताकत में रखना, यानी मेरे पास सुनना है, ले जाको मैं मारवाड़ी गाने ताकत रखा, तो अब ज़कात मैं अदा करना, नहीं तो ना अदा करना। तो मसला ये है, तो मैं अगर ताकत ले जाकर रखता हूं तो भी मैं भी ज़कात देने की जरूरत नहीं है, उन भी ज़कात नहीं देता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हाथ में नहीं ना, इस वजह से मैं ज़कात नहीं देना।
अगर सामने वाला कहीं को उन मालिक इस नहीं, उनका पूछा कि दे डालना पड़ता, तो इस वास्ते उन भी ज़कात देने का नहीं रहता। अच्छा, मैं गिरवी में रख लिया हूं, तो उस वक्त क्या मसला है? उस वक्त भी यही मसला है, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं, मेरे पैसे वहां कर्ज में अटक पे है, उन पैसे दिया तो मैं ज़कात अदा कर दूं, नहीं दिया तो नहीं, इस तरह। तो गिरवी में ताकत में रखे सो चीज का हुक्म यह है कि अगर सामने वाला मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, तो सामने वाला भी ज़कात अदा नहीं करेगा, मैं भी ज़कात अदा नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों भी कंप्लीट मालिक नहीं है, उन भी पूरा मालिक नहीं है, मैं भी पूरा मालिक ना होने की वजह से ज़कात अदा करना नहीं। ऐसा चिट्ठी के पैसे, जैसे चिट्टा डालते हैं ना, 10,000 की चिट्ठी, लाख रुपए की चिट्ठी, 2 लाख की चिट्ठी, 50 लाख की चिट्ठी, 20 लाख की चिट्ठी, ऐसा जो डाल लेते हैं, वो चिट्ठी के अंदर पैसे देते हैं, तो वो पैसे जो देते हैं वो भी 60 पर 5,000 के ऊपर होता है, तो उसके अंदर भी ज़कात वाजिब होता है। वो पैसे भी सेविंग के जैसा शुमार किया जाएगा। अगर उस पर साल गुजर जाता है, किसी किस्म का कर्ज नहीं है, तो उसको भी मिला लेना पड़ेगा। यानी ज़कात फर्ज होने का मतलब क्या हो? इसका मतलब यह है कि एक के पास क्या है, 2 ग्राम सुन्ना, 10 ग्राम चांदी, 10,000 अकाउंट में बैलेंस है, एक है ना इंश्योरेंस के पैसे जर्रे आते, तिजारत के पैसे जर्रे है, तो ये सब भी जमा लेने के बाद वो 60 पर 5,000 के ऊपर आता है। कितना आया कि वो सबको मिलाकर उसके अंदर से ज़कात निकालना पड़ेगा। तो 10,000, 5,000 कहाँ रखो है कि सब भी देखना पड़ेगा। कहाँ इंश्योरेंस के अंदर रखो है, LIC के अंदर रखो है, और शेयर मार्केट में लगा को है, चिट्ठी के अंदर रखो है, बैंक अकाउंट में है, इस तरह तमाम चीजों को मिलाए, और वो जरूरत में से नहीं है, यानी डेली खर्चों के अंदर से वो चीज नहीं है, और वो 60 पर 5,000 ऊपर जाता है, तो तब जाकर इन तमाम को मिलाकर ज़कात अदा करना पड़ेगा। ओनली 60 पर 5,000 एक ही उसमें हो जाता है। चीटी के पैसे 2 लाख का चीटी डाला, वहां देखे तो 1.5 लाख बन को है, तो 1.5 लाख का साल हो गया है, 2 साल से बनता है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाता है। वो चीटी के 2 लाख के पैसों का ज़कात अदा करना पड़ेगा। और ऐसा ज़कात के पैसे मस्जिद को देना करेक्ट है क्या? तो ज़कात के पैसे मस्जिद को देना जायज नहीं है, ज़कात के पैसे मस्जिद को देना जायज नहीं है। और इसी तरह जैसे कि इससे पहले भी मसला आया था कि भी ट्रस्ट को देना भी दुरुस्त नहीं है, यानी जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं लोगों के, ऐसे ट्रस्ट को भी ज़कात के पैसे देना, वहां तो गरीबों पर ही तकसीम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ले रहा है वो अगर सही आदमी है तो ऐसे वक्त में दिया जा सकता है। सामने वाला इंसान सही नहीं है तो ऐसे वक्त में मालूम नहीं उनको की कोसा ट्रस्ट वाला की मालूम नहीं कोसा की लगा ले आ गया, तो उसे ज़कात के पैसा देना करेक्ट नहीं है किसी मुसलमान को। और ऐसा वो ट्रस्ट वाले वो ले जाको मुसलमान को देते क्या, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़कात के पैसे गैर मुस्लिम को देना जायज नहीं है। तो अब हमने ट्रस्ट को दे दिया, वो ट्रस्ट वाले ले जाकर मुसलमान को देना कोई जरूरी नहीं, हर एक को दे सकते, नॉन मुस्लिम को दे सकते, किसी भी वो ज़कात के पैसे दे सकते हैं। तो इस वजह से ज़कात के पैसे ट्रस्ट वालों को देना, एहतियात करना ज्यादा अच्छा है, नहीं देना ज्यादा अच्छा है। अगर मालूम है नहीं मुझे मालूम है ले को करेक्ट आदमी को देते बोलकर पक्का भरोसा है, तो तब जाकर दिया जा सकता है। तो नंबर 2 क्या है, ज़कात के पैसे गैर मुस्लिम को देना भी जायज नहीं है। और इसी तरह सदका फितर कब वाजिब होता है? सदका फितर यानी सदका जो हम लोग फितरा कहते हैं, फितरा कब वाजिब होता है? जिस इंसान के पास 7.5 तुल्ला सुन्ने के पैसे हो या 60 पर 5,000 चांदी के पैसे हो है, तो उस पर साल गुजरना भी जरूरत नहीं, कर्जा होना नहीं होना क्या भी जरूरत नहीं, तो उस पर फितरा वाजिब है। यानी किसी इंसान के पास 60 पर 5,000 की चीजा है, चीजा क्या हो, घर में टीवी है, AC है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, 60 पर 5,000 के है पूरे मिलाए तो, या ऐसा पित्तल के चीजा है, रागी के चीजा है, सब भी मिलाए तो 60 पर 5,000 का होता है। गाड़ियां है 2-3 गाड़ियां, एक गाड़ी 60 पर 5,000 से ज्यादा है। तो ऐसे जो चीजें हैं अगर वो चीजें 60 पर 5,000 होती है तो उस पर फितरा वाजिब है, सदका फितर उन देना। ईद के दिन सदका फितर वो देकर ही नमाज पढ़े अगर, तो ऐसे इंसान पर फितरा वाजिब हो जाता है। और फितरा कितना देना है? तो अगर कोई इंसान अच्छा है, मालदार है, तो गेहूं के अंदर 100 रुपए है, कितना? 1 किलो 70 पर 5 ग्राम, 1 किलो 70 पर 5 ग्राम यानी पौकम 2 किलो, पौकम 2 किलो गेहूं का रेट 100 रुपए है, तो वो आज के हिसाब से तो उस पर सदका, उस पर फितरा 100 रुपए होगा। गेहूं का रेट देना चाहता है तो 100 रुपए। गेहूं कितना देना? अगर गेहूं देना समझता है तो 1 किलो 70 पर 5 ग्राम गेहूं देना पड़ेगा, तो ये गेहूं का है। अगर इसी तरह बार्ली में देता है,
बार्ली में देता है तो उसके वास्ते 210 रुपए, वो कितना 3 किलो 500 ग्राम यानी 3.5 किलो। 3.5 किलो बार्ली के पैसे, बार्ली देता है तो 3.5 किलो देना, अगर पैसे देता है तो 210 रुपए उसके पैसे देना पड़ेगा फितरा। एक आदमी का, पूरे खानदान का मिला को नहीं, पूरे घर में 5 जन है तो 5 जन मिला के एक ही फितरा नहीं, हर एक को 210 रुपए अलग अलग से देना। और इसी तरह नंबर 3, और अच्छा मालदार है तो खजूर, खजूर का भी यही हुक्म है 3.5 किलो। 3.5 किलो 490 रुपए, 490 रुपए पैसे देना समझता है तो 490 रुपए से देना, नहीं अगर किलो के हिसाब से खजूर आज बांट डालेंगे समझता है तो 3.5 किलो खजूर देना पड़ेगा। और अगर और किशमिश, इससे भी हाई रेंज, अगर ज्यादा हाई रेंज है तो किशमिश देता है तो वो भी 3.5 किलो। 3.5 किलो है, अगर रेट के हिसाब से देना है तो 805 रुपए है। 801 फितरा 805 रुपए का है। अब ये लेवल्स है, हाई लेवल क्या है 805 रुपए, मीडियम लेवल 210 रुपए, उससे जरा ज्यादा 490 रुपए, उससे सबसे लोएस्ट 100 रुपए। तो ये फितरे के रेट हैं। तो अब किसका हैसियत क्या है उस हिसाब से फितरा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मालदार हो कम मालदार हो एक ही चेक 100 रुपए फिक्स, ऐसा नहीं है। 4 लेवल से हमारी हैसियत क्या है हमें मालूम है, हम कितना कमाते हैं, हमारा इनकम सोर्स क्या है, हम कैसा हमारा हाल है, उस हिसाब से हमें फितरा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ज्यादा मालदार है तो किशमिश का रेट दे, नहीं मीडियम रेंज का है तो 210 रुपए दे, नहीं आखिरी दर्जा तो 100 रुपए तो देना है। तो ये फितरे की इसमें है, इनमें से कोई भी सूरत दे सकते हैं। और ऐसा ज़कात के पैसे से रोजेदारों को खाना खिलाना कैसा है, ज़कात के पैसे से तो इंसान रोजेदार खाना खिलाता है या लोगों को खाना बांटता है, तो ऐसा खाने बांटना सही नहीं है। रोजदारों को खाना खिलाना ज़कात के पैसे से सही तरीका नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि ज़कात जब तुम निकालो तो कपड़े बांटना, रेशन बांटना ऐसे के काम न को करो, क्या करो उठा को पैसे दियो। क्यों पैसे देने का हुक्म देते हैं उलमा, फरमाते हैं इसलिए कि उसे क्या जरूरत है कि वो मोल लेता, तुम्हें ज़कात के पैसे देना है, तुम्हें क्या करे कपड़े ले जा दिया, हर एक आदमी ज़कात के पैसा में कपड़े रेशना दिया तो यहाँ रेंट बनना है, उसे हासिल होना है तो पैसे तुम्हें ले जाओ कपड़े दिए तो रेंट तो नहीं बन सकता, उसकी जो जरूरत है वो पूरा करने वाला बन सके। अगर कोई इंसान उसे होना है रेशन, तुम्हें ले जाओ ज़कात के कपड़े दे डाले, उन क्या कर लेता कपड़े पहन ले तो पेट तो भरता नहीं ना। तो इस तरह ज़कात के वक्त देने के वक्त रेशन कपड़े दूसरी चीजें देने के बजाय पैसे देने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं ज़कात के पैसों से अक्सर कपड़े बांटते हैं, कोई रेशन बांटता है, ये सही तरीका नहीं है। बाज़ उलमा तो इससे मना फरमाते हैं, असल ज़काती चदा होता नहीं, कई को उससे जरूरत है सो दिए नहीं सरकार तो होना है सो तेर राजी है सो दिए तो कैसा, इससे उलमा मना फरमाते हैं। इसलिए ज़कात देते हैं तो पैसे ही देने की कोशिश करनी चाहिए। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वक्त की कमी है, तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मा अलैया इल्लल बलाग।